صبر عاشق ظاہر انسو ظاہر زوردار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت تہد شکر گزار برینچ کن باشندن ہند تمام بزرگن ہند بائن ہند بیین ہند یم یوت آئے سنس یتھ پنچایتس من آز اس من کی بات یتھ مز گیسٹ چیف گیسٹ محمد مقبول گنایی صٲب اس پتمہ رٮ۪تہٕ تہِ من کی بات پھرتھکیس مز آمٕژ کرنہٕ من کی باتس مز تۄہہِ منٛز آسن کینٛہہ آسن نہٕ تتھ منٛز چھُ مےٚ برٛنٛچِکۍ کینٛہہ مسلہٕ تُلمٕتۍ تِم تھاو بہٕ سرس نِش وٕنکیٚس بیٚیہِ تِم چھِ اَسہِ آلریڈی سینٹرل گورمنٹس تام واتنٲومٕتۍ گۄڈنیُک مسلہٕ چھُ اَسہِ سر حظ جے کے بینک برٛنٛچس منٛز آمُت گۄڈنیٚتھ فٔسٹ پریارٹی منٛز یِوان وننہٕ دوٚیِم چھُ مےٚ مسلہٕ تُلمُت تتھ منٛز حظ کہِ فایر سٹیشن برٛنٛچس منٛز کیٛازِ اَسہِ چھُنہٕ فایر سٹیشن منٛز برٛنٛچس منٛز کِہیٖنۍ ترٛیٚیِم مسلہٕ چھُ مےٚ ییٚتہِ تُلمُت حظ تِمن سۭتۍ تمہِ دۄہ اَسہِ دِیِو اگر اَسہِ ہاے سکوٗل چھُ اَسہِ کیٛازِ چھنہٕ ہایر سیکنڈری حظ ییٚتہِ بنان کیٛازِ اَسہِ تہِ چھا ضروٗری یہِ چھِ اَسہِ سٲرسٕے گامس یہِ چھُنہٕ أکسٕے گرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ حظ کینٛہہ اَسہِ چھِ آمٕتۍ آز تٔتی پٮ۪ٹھ چیف گیسٹ سوزنہٕ محمد مقبول گنایی صٲب تہٕ شُکُر گُزار بہٕ برٛنٛچ کٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ واریاہ شُکُر گُزار اور اس پنچایت کے ذریعے اپنے گاؤں کے مسائل حل کری. وقت کا تقاضا ہے کہ اگر ملک میں قیادت آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیترتو میں ہے, اگر جموں کشمیر میں آج گورنر صاحب کے ہاتھ میں باگڈور ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی سرکار کی قدر کرتے ہوئے وقت کی سرکار کے ساتھ ہاتھ ملائیں, تاکہ جو ہمارے اس بیٹی علاقے کے مسائل ہیں, چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ آبپاشی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پینے کے پانی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ روڈز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو, چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو, اور سرکار کے ساتھ ہم شانہ بشانہ چل کے اپنے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کریں گے. ساتھیوں, ضرور یہ کوئی سیاسی اکھاڑا آج نہیں ہے, آج سیدھے سرکار آپ لوگوں کے گھروں تک ہے, چاہے وہ پنچایت لیول کے ذریعے ہے, چاہے وہ محکموں کے ذریعے ہے, اور سب سے بڑی بات سرکار آپ تک سکیموں کے ذریعے پہنچتی ہے. جیسے بیک ٹو ولیج ہوتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی دیکھا وکست بھارت, ایک جٹ بھارت, کیا معاملہ ہے, کیا مقصد ہے سرکار کا, اس میں کیا مقصد ہے ہمارے نریندر بھائی مودی کا کہ وہ اتنا خرچہ کرے اور بیٹی میں وہ گاڑی بھیجے, اس میں ٹی وی لگائے, آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ سکیمیں سرکار کے پاس ہے اور اس سکیم کا فائدہ آپ لوگوں کو کیسے لینا ہے, کیوں اس میں خرچ کرے پیسہ. سرکار اس میں پیسہ خرچ کرتی ہے بہت سارا, لیکن ایک بیٹی کے عام انسان کو, میری ماں کو, بہن کو, اس کے ذہن کو یہ ہوشیار کرنا چاہتی ہے کہ آپ اپنے مسئلے کو اپنے دروازے پہ ہی حل کروا سکتے ہو. ہم آپ کے پاس وشوکرما بھیجتے ہیں, ہم آپ کے پاس لاڈلی بیٹی بھیجتے ہیں, ہم آپ کے پاس کسان کریڈٹ کارڈ بھیجتے ہیں, ہم آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ بھیجتے ہیں, لیکن آپ لوگ ان چیزوں سے بے خبر ہو. اس لیے میرے بیٹی کے نوجوانوں کو, بزرگوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو اس کا فائدہ لینے میں شاید دقت پیدا ہوتی ہے, اور اس چیز کے لیے میں اپنے پردھان منتری آنریبل نریندر بھائی مودی کا, اس کی ٹیم کا, بھارتیہ جنتا پارٹی کی سینٹرل قیادت کا, بھارتیہ جنتا پارٹی کی اسٹیٹ قیادت کا اور ٹیم کا, بھارتیہ جنتا پارٹی کے ڈسٹرکٹ اننت ناگ کے ٹیم کا, اور اس کانسٹیٹوئنسی کے
आने वाले इंशाल्लाह मायनाज लीडर MLA मोहम्मद रफीक वानी साहब जो कि हमारे कश्मीर के इंचार्ज हैं, उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कोशिश की कि एक आम इंसान को अगर वो किताबों के जरिए ना समझा, अगर वो पंचायत ग्राम सभा के जरिए ना समझा, अगर वो अखबारों के जरिए ना समझा, अगर वो फेसबुक के जरिए ना समझा, उसके घर तक टीवी के जरिए उसको बताएंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल आपके पास है और सरकार की स्कीमों के पास है। जो आज यहाँ पे मन की बात ब्रिंटी पंचायत ए में ये पूरे भारत में नरेंद्र भाई मोदी ने अरेंज की हुई है और उसके मन में क्या है लोगों के प्रति, मुल्क के प्रति, एक गरीब के प्रति, और इस ब्रिंची के हवाले से मैंने यहाँ लोगों से बात की कि आप हमें बताइए ये जो मन की बात प्रोग्राम नरेंद्र भाई मोदी ने शुरू किया है, क्या लोगों को इस मन की बात से कोई लाभ मिला है? और यहाँ से जवाब आया आम इंसान से कि हमें हमारे मनों को शांति, हमारे दिलों को शांति, और हमारे जो मसाइल थे, जो मामलात थे जिनको हम हल नहीं कर पाते थे, हमें पता नहीं था कि हल कैसे होते हैं, नरेंद्र भाई मोदी की मन की बात ने हमें तरक्की का रास्ता दिखाया, शांति का रास्ता दिखाया, इंसानियत का रास्ता दिखाया। इसलिए हम अपने मन को बजरिए रेडियो नरेंद्र भाई मोदी के मन के साथ मिलाने में कामयाब हो गए और ये मन की बात आगे भी चलती रहनी चाहिए। इसको हम कामयाब करेंगे ताकि आम इंसान का, मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरे बुजुर्ग का और मेरे नौजवान का मन शांत रहे, सही सलामत रहे और तरक्की के काम में काम आए। आज मैंने मन की बात सुनी और इसी साथ साथ यहाँ के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज, कश्मीर प्रोविंस के इंचार्ज मोहम्मद रफीक वानी साहब ने मुझे जम्मू से फ़ोन किया और मैसा रफीक वानी ने मुझे जम्मू से फ़ोन किया कि मन की बात सुनने के बाद आप वहाँ के लोगों की बात भी सुनना, आप वहाँ के लोगों के मामलात भी सुनना। और यहाँ जो लोग मेरे पास आए, माशाल्लाह बड़े अदब से उन्होंने यहाँ पे डिमांडें रखी। उन्होंने ब्रिंटी के पंचायत हलके के हवाले से जो यहाँ आपाशी निज़ाम, एग्रीकल्चर निज़ाम बिल्कुल ख़राब था, उसके बारे में बात की। शीलीपोरा, ब्रिंटी शीलीपोरा कनाल जो कि यहाँ जिसको अछबल के पानी से सैराब के लिए अछबल का पानी आता था, वो बहुत नाकस नाकारा है, उस बारे में उन्होंने शिकायत की। पावर सेक्टर के बारे में उन्होंने शिकायत की। यहाँ स्कूल जो कि बहुत 70 सालों से अपग्रेड नहीं हुआ, उसके बारे में यहाँ पे मसला रखा और मैंने इन तमाम मसाइल को दर्ज करके इनको आश्वासन दे दिया। रफीक वानी साहब के कहने पे मैंने यहाँ पे ये बातें सुनी, मैं पार्टी तक ये ले जाऊँगा, वानी साहब के तक ये ले जाऊँगा, एज BDC चेयरमैन कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हमारे साथ हमारे अर्शिद साहब थे जो कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कुछ बड़े मसाइल यहाँ पे रखे, JK बैंक के रखे, फायर सर्विस का रखा, हेल्थ सेक्टर का रखा, और मैं आश्वासन देता हूँ कि इन तमाम मसाइल को मैं भारतीय जनता पार्टी की क़यादत तक ले जाऊँगा और मुकम्मल हल करने की यकीन दहानी करा के जा रहा हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज मन की बात यहाँ ब्रिंटी बटपोरा में हमारा चीफ गेस्ट था यहाँ मोहम्मद मकबूल गनाई साहब जो DDC चेयरमैन भी अछबल ब्लॉक का है। हमारा मसला यही था कि पहले भारतीय जनता पार्टी में ये लोग बोल रहे थे कि भीड़ अमन पसंद गांव नहीं है। आज उन्होंने देखा है कि ब्रिंटी कितना अमन पसंद गांव है। यह हमारा दूसरा मन की बात थी, पहले प्रतिक्रिया में थे, आज ब्रिंटी पंचायत में है। अब हम यही कहना चाहते हैं मोहम्मद रफीक वानी साहब को, रुमाइश साहब जी को, नज़ीरा मोहम्मद मकबूल गनाई साहब को, जो हमने मसले ब्रिंटी के रखे हैं, ख़ासकर JK बैंक का मसला है, हायर स्टेशन का मसला है, हायर सेकेंडरी का मसला है, या हेल्थ डिपार्टमेंट का मसला है। हमारा मसला ये है कि ये जल्द अज जल्द हल हो जाएंगे, हम इनके बिल्कुल साथ हैं। दूसरी तरफ हमारे ये यूथ है, जो छोटे लड़के हैं यहाँ आए हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया है। हम इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक किट देंगे जो भारतीय जनता पार्टी इनको डोनेट करते हैं, वो हम इनको देंगे। बाकी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मकबूल साहब का भी जो यहाँ चीफ गेस्ट थे आज मन की बात का,
तो मकबूल साहब जो इधर चीफ गेस्ट थे उन्होंने बहुत से मन की बात अच्छी तरह सुनी, हमने भी सुनी, गाँव ने भी सुनी, बहुत से लोग आए मन की बात सुनने के लिए। इसलिए मकबूल साहब मन की बात जब सुनने के बाद गांव के मसाइल जो थे वो एक एक करके मकबूल साहब ने सुनी। गांव की डिमांड्स हमने मकबूल साहब को रखी, और इससे पहले भी हमने रफ़ीक साहब को डिमांडें रखी जो आज आपको भी पता होगा जायद साहब के उस दिन भी मन की बात थी प्रतिज्ञा में, हल्के प्रतिज्ञा में। इसलिए ये मकबूल साहब जो डिमांड हमने फिर से वही डिमांडें की, और जो लोगों को अपनी डिमांडें थी गांव के वासादत से, तो वो भी मकबूल साहब के सामने रखी हमने। और वही डिमांडें हम अभी भी रफ़ीक साहब को ये वैसे तो मीडिया की तरह से हम उससे मैसेज बनाना चाहते हैं कि जो हमने वो बैंक का रखा था डिमांड, और जो हमने वो क्या बोलते हैं फायर सर्विस का डिमांड रखा और हाई सेकेंडरी का डिमांड रखा, वो सबसे पहले हमें होने चाहिए। क्योंकि रफ़ीक साहब वक्त हम उससे बात भी कर रहे हैं, हमारे अर्श साहब भी बात कर रहे हैं उससे, वो प्रयास चल रहा है अभी। तो मकबूल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ आए, और मकबूल साहब का ये भी शुक्रिया, इस गांव का भी शुक्रिया है कि ये वैसे बीडीसी चेयरमैन इधर थे, अभी भी हैं अशबल ब्लॉक के। लेकिन जब भी हम गांव के मसाइल, मैं खुद बोलता हूँ, मैं जब गांव के मसाइल लेके मकबूल साहब के पास गया तो वो कोई मसला नहीं जो मकबूल साहब ने हल नहीं किया है हमारे गाँव के लिए। हमारे गाँव के लिए जो भी स्कीम्स थे मकबूल साहब ने उन हर स्कीमों को हमारे ऊपर, गाँव के ऊपर के साथ गरीबों के अपने हक पहुंचाए। मकबूल साहब का मैं गांव की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसी बीडीसी कभी नहीं मिलेगा जो मकबूल साहब बीडीसी चेयरमैन थे, ऐसा कभी दोबारा उठे या ना उठे, लेकिन मकबूल साहब जैसा नहीं उठेगा। इसलिए मैं मकबूल साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारे गाँव को ताउन करता है, अभी भी लोगों से उन्होंने ताउन किया है। जो भी लोगों ने ये जो भी मसाइल रखे मकबूल साहब को हल करेंगे, वो हमें पूरा उम्मीद है ये आला हुकाम तक पहुँचेंगे हमारे मसले।